students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is animate layers and animation. Let's get started. In the previous class, we have learned about basics of animate CC. On the basis of that, state whether these statements are true or false. Adobe Animate Creative Cloud CC is a software developed by Adobe Systems. Timeline is a panel which is divided into animation. A shape in Animate CC has two parts, fill and stroke. Tools panel contains all the tools required to create shapes. Strokes means inside of the shape. बच्चों हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था Adobe Animate CC के बारे में, ठीक है। तो उस स्टडी के बेसिस पे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं Adobe Animate के बारे में। आपको जो स्टेटमेंट ट्रू है उसके आगे आपको ट्रू लिखना है, जो रॉन्ग है उसके आगे आपको फॉल्स लिखना है। In the previous class, you have learned now to make drawings using various shape tools and much more. Adobe Animate CC is a popular animation software used for creating computer animation, games, cartoons, text, graphics and other special effects. It also helps to design movies on the web and create animations without using programming skills. Let us now work on moving these objects on the stage to क्रिएट एनिमेशन। तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने जाना था कि हम कैसे ड्राइंग्स परफॉर्म करते हैं, कैसे कैसे हम डिफरेंट शेप्स टूल्स को यूज़ करते हैं Adobe Animate CC में, ठीक है। और हमें ये भी पता है कि Adobe Animate CC जो है वो एक पॉपुलर एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपनी एनिमेटेड मूवीज़ को क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें हम गेम्स वगैरह, कार्टून्स वगैरह भी डालते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्हें मूव कराते हैं एनिमेशन के स्टेज पे। सिंबल एंड इंस्टेंसेस। अ सिंबल इज अ reusable object created in Animate. When we create a symbol, it automatically becomes a part of the library. We can create various copies of symbol and raise as many times as we want. A copy of the symbol is called an instance of the symbol. There are basically three types of symbols: graphics, buttons, movie clips. Graphics symbols are the most basic type of symbol and are mostly used to create backgrounds. तो बच्चों अब हम सिंबल एंड इंस्टेंसेस के बारे में जान लेते हैं। सिंबल्स जो होते हैं वो आपके रीयूजेबल ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, जिन्हें आप एनिमेट में क्रिएट करते हो। जब आप उन्हें एक बार क्रिएट कर लेते हो तो वो आपकी लाइब्रेरी में क्या हो जाते हैं, सेव हो जाते हैं, और इन्हें आप बार बार क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हो, और साथ ही साथ आप इनकी कॉपीज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जो सिंबल्स की कॉपी होती है वो इंस्टेंस कहलाती है किसी भी सिंबल का, और ये बेसिकली थ्री टाइप्स ऑफ सिंबल होते हैं: ग्राफिक, बटन्स, मूवी क्लिप्स। क्रिएटिंग अ सिंबल. To convert an already drawn object on the stage to a symbol, follow the given steps. Step 1. Select the object you want to convert into a symbol. Step 2. Right click on your selected object. A menu appears, or open the modify menu and select the convert to symbol option, or press F8. Step 3. The convert to symbol dialog box appears. Step 4. Type a name for your symbol. Step 5. Click on graphic from the type drop down list. Step 6. Click on OK. The symbol is added to the library and the object on the stage becomes an instance of the symbol. अब बच्चों यहाँ पे जान लेते हैं कैसे हम सिंबल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है, जिसे आप सिंबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, एक मेन्यू जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप अपने मेन्यू को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको मॉडिफाई मेन्यू को ओपन करना होगा, देन आपको कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन को क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे F8 जो बटन है उसे भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। आपके सामने कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको नेम टाइप करना है अपने सिंबल के लिए, जो भी आप नाम देना चाहते हैं। उसके बाद आप ग्राफिक पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको टाइप ड्रॉप डाउन लिस्ट में नज़र आएगा। उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, तो आपका जो सिंबल है वो आपकी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टेज पे इंस्टेंस बन जाएगा किसी सिंबल का। क्रिएटिंग इंस्टेंसेस. An instance is a copy of the original
symbol which we drag from the library to the stage. The size, color, shape and position of an instance can be altered without affecting the original symbol. तो बच्चों इंस्टेंस हमने पढ़ा ही था पहले. इंस्टेंस जो होते हैं वो आपके ओरिजिनल सिंबल की कॉपी होती है, ठीक है, और इसे आप लाइब्रेरी से ड्रैग करके स्टेज पे लेके आ सकते हो. इसकी जो साइज़, कलर, शेप और पोजीशंस होती है वो आप ऑल्टर कर सकते हो, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग ओरिजिनल सिंबल. मतलब ओरिजिनल सिंबल को बिना छेड़े आप इंस्टेंसेस के साइज़, कलर, शेप को चेंज कर सकते हो. The frames and keyframes. Each image in Animate is called a frame. In Animate, a timeline organizes the contents of animation. It allows you to control the contents that are displayed over time in frame and keyframes. A frame holds the contents at a particular moment. We create animation by changing the content of successive frames. Inserting more frames increases and deleting frames decreases the duration of the animation. Frames appear to the right of the layer in the form of a small rectangular boxes. Notice that every fifth frame has a light gray fill and is marked with a frame number 5, 10 and so on. Frame has a black dot over it indicating that it is a keyframe and contains an image in it. Keyframes are those frames where major changes take place, such as moving, changing shape, fading, spinning and so on. Thus, a keyframe is a special frame which signals a change or action. तो बच्चों फ्रेम के बारे में जान लेते हैं कि कैसे हम फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है. हर एनिमेशन में आपका फ्रेम होता है, ठीक है, उसमें जो इमेज होती है एनिमेट में वो आपकी फ्रेम कहलाती है, और एनिमेट में जो आपके टाइमलाइन होती है वो आपके कंटेंट ऑफ एनिमेशन को ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है. ये आपके कंटेंट के कंट्रोल को भी अलाउ करती है कि आपको कैसे अपना जो फ्रेम है वो डिस्प्ले करना है, ठीक है. फ्रेम एंड की फ्रेम दोनों आप अपने अकॉर्डिंग चेंज या मॉडिफाई कर सकते हैं. एक फ्रेम जो होता है वो आपके कंटेंट को होल्ड करके रखता है किसी पर्टिकुलर मोमेंट के, ठीक है, और इन्हें हम क्रिएट करते हैं अपने एनिमेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है. आप मोर फ्रेम्स को इंसर्ट कर सकते हो ताकि आप जो अपने एनिमेशन है उसकी ड्यूरेशन को आप क्या कर सको, इंक्रीज़ कर सको. अगर आप अपने फ्रेम को डिलीट करते हो तो आप अपने एनिमेशन की जो ड्यूरेशन है उसे भी आप डिक्रीज़ करते रहते हो. फ्रेम जो होते हैं वो आपके राइट लेयर पे क्या होते हैं, अपीयर हो रहे होते हैं, ठीक है. वो आपके स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स में आपको दिख रहे होते हैं, जिनमें से आप अलग अलग फ्रेम्स को चूज़ करके आप उनमें से कोई भी डिज़ायर्ड फ्रेम जो है वो अपने एनिमेशन में ऐड कर सकते हैं. एनिमेशन में जो फ्रेम्स होते हैं वो आपको ब्लैक डॉट के साथ नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है, और जो आपका करंट फ्रेम होता है जो कि आपके एनिमेशन में अप्लाइड होता है वो आपको हाईलाइटेड किया हुआ नज़र आ रहा होता है. की फ्रेम्स जो होते हैं वो आपके वो फ्रेम्स होते हैं जो आपके मेजर चेंजेस के साथ आते हैं, जैसे कि आपका मूविंग, चेंजिंग शेप, फेडिंग, स्पिनिंग एंड इस तरह से. इसलिए जो की फ्रेम होते हैं वो आपके स्पेशल फ्रेम माने जाते हैं, ठीक है, जो कि एक तरह का सिग्नल होता है जिसके थ्रू आप अपने एनिमेशन को चेंज या उसको एक्ट करवा सकते हैं. डू यू नो अ ब्लैंक की फ्रेम इज मार्क्ड बाय अ वाइड और हॉलो डॉट indicating that it is empty and a key image is yet to be drawn in it. जो ब्लैंक फ्रेम्स होते हैं वो वाइट हॉलो डॉट के साथ आते हैं. इसका मतलब होता है कि आपके जो की इमेज है वो अभी भी क्या है, एम्प्टी है, और उसमें आपको अभी भी कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है. Inserting frames and keyframes. While creating an animation, we need to frequently insert frames and keyframes in the timeline. Let us learn the steps to do so. To insert a frame, first click on the frame to the left of which you want to insert a frame. Second, click on Insert Timeline Frame. The frame will get inserted to the left of the selected frame. To insert a keyframe or a blank keyframe, first click and select the frame where you want to insert a keyframe. Second, click on Insert Timeline Keyframe or simply press the F6 key to insert a keyframe, or click on Insert Timeline Blank Keyframe. The blank keyframe will get inserted. You can also right click on a selected frame and use the options displayed in the shortcut menu to insert frames, keyframes and blank
की फ्रेम्स। तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स को इंसर्ट करते हैं। जब आप कोई भी एनिमेशन क्रिएट करते हो तो आप फ्रीक्वेंटली उसमें अपने फ्रेम्स एंड की फ्रेम्स को इंसर्ट करते हो अपनी टाइमलाइन में। ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं। अगर आपको फ्रेम को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपको फ्रेम पे क्लिक करना पड़ेगा जिसे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इंसर्ट, फिर उसके बाद आपको टाइमलाइन पे जाना है, देन आपको फ्रेम पे जाना है। तो आपका जो फ्रेम है वो आपके सेलेक्टेड फ्रेम में सेलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको की फ्रेम या फिर आपको ब्लैंक की फ्रेम को इंसर्ट करना है तो उसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रेम को। ठीक है, जिसे आप की फ्रेम में सेलेक्ट करना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे, देन आप टाइमलाइन पे जाएंगे, देन आप की फ्रेम पे जाएंगे, या फिर आप सिंपली F6 की को प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे। ठीक है, या फिर एक और ऑप्शन है आप, तो बच्चों इसके बाद आप सेलेक्टेड फ्रेम पे राइट क्लिक कर सकते हैं और ऑप्शन में से आप चूज कर सकते हैं डिस्प्ले इन द शॉर्टकट मेन्यू टू इंसर्ट फ्रेम्स, की फ्रेम्स एंड ब्लैंक की फ्रेम्स। ठीक है, to insert multiple frames. To insert multiple frames, select as many frames as you want to insert by clicking at a frame and then dragging the mouse. Right click on the selected frames and from the shortcut menu select the insert frame option. To delete frames and keyframes, to delete a frame or keyframe, right click on it and from the shortcut menu select the remove frames or the clear frame option as required. तो बच्चों यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम अपने एनिमेशन में मल्टीपल फ्रेम्स को क्रिएट करते हैं। अगर आपको मल्टीपल फ्रेम्स को क्रिएट करना है या इंसर्ट करना है तो आपको काफ़ी सारे फ्रेम्स को सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको उन फ्रेम्स को ड्रैग करके लेके आना पड़ेगा। ठीक है, देन आप सेलेक्टेड फ्रेम्स पे राइट क्लिक करेंगे और शॉर्टकट मेन्यू से आप इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी फ्रेम या की फ्रेम को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे उस फ्रेम या की फ्रेम पे और आपको शॉर्टकट मेन्यू से रिमूव फ्रेम पे जाना है या आपको क्लियर की फ्रेम ऑप्शन पे जाना है ताकि आपका जो की फ्रेम है या फ्रेम है वो हट जाए। टेक टिप, द F5 बटन क्रिएट्स अ फ्रेम, F6 क्रिएट्स अ न्यू की फ्रेम एंड F7 क्रिएट्स अ ब्लैंक की फ्रेम। लेयर्स इन एनिमेट. The main purpose of layers is to provide a separate timeline for object. Using layers, you can control objects' animations independently in separate layers. The timeline is divided horizontally in frames and vertically in layers. Layers are like pieces of transparent sheets. You can put pictures, text and animation on them. You can hide, unhide, lock layers for convenient manipulation of objects on them. Animate automatically gives names to layers as they are created and numbers them starting from layer 1, layer 2 and so on. The standard view of a layer is shown in the figure given on the next page. There are several kinds of layers. These are normal layers, guide layers and mask layers. By default, all the layers you add to timeline are normal, which means all the objects on the layer appears in the movie. The object that you place on guide layers do not appear in the movie. When a new animate movie is created, it contains only one layer by default. तो बच्चों लेयर्स के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, जो लेयर्स का मेन पर्पस होता है वो आपके ऑब्जेक्ट को आपकी सेपरेट टाइमलाइन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, आप लेयर्स को यूज़ करते हो ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो एनिमेशन है, वो आप इजीली कंट्रोल कर सको उसे इंडिपेंडेंटली इन सेपरेट लेयर्स। ठीक है, जो टाइमलाइन होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली लेयर्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली आपको ये फ्रेम्स में डिवाइड होती है, वर्टिकली आपको लेयर्स में डिवाइड होती है। जो लेयर्स होती हैं वो पीसेस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट्स की तरह होते हैं। ठीक है, जिसमें आप पिक्चर्स, टेक्स्ट एंड एनिमेशन को डाल सकते हो। साथ ही साथ आप इन्हें हाइड, अनहाइड, लॉक, अनलॉक भी कर सकते हो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। ठीक है, एनिमेट जो होता है वो आपको ऑटोमेटिकली नेम ऑफ लेयर्स देता है जिसको आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो। ठीक है, साथ ही साथ आप उन्हें क्या करते हो, नंबर्स भी प्रोवाइड करते हो। जो स्टैंडर्ड व्यू होता है लेयर का वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पे सेवरल काइंड ऑफ लेयर्स आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, जो कि आपकी नॉर्मल लेयर, गाइड लेयर एंड मास्क लेयर के हिसाब से देखने को मिलती है।
बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर्स होती हैं आपकी टाइमलाइन में वो नॉर्मल ही होती हैं, जिसका मतलब होता है आपके जो ऑब्जेक्ट हैं आपकी लेयर में आपकी मूवी में किस तरह से अपीयर होंगे। ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये आप प्लेस करते हो ऑन गाइड लेयर्स, ठीक है, जो कि आपकी मूवी में अपीयर नहीं होते। जब आप आपकी मूवी जो है वो क्रिएट करते हो तो इसमें आपके लेयर्स जो होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंटेन होते हैं। वर्किंग विद लेयर्स, one layer can be activated at a time, but more than one layer can be selected at one go. Working with layers is interesting. You can rename a layer, add numbers of layers, hide or lock layers, delete layers, change the position of layer, and the layer can also be customized. To insert a new layer, click New Layer button from the timeline panel. You can also insert new layer by clicking on Insert Timeline Layer. To delete a layer, select the layer and click Delete Layer button from the timeline panel. You can delete more than one layer by clicking the first layer you want to delete and then press Ctrl key while clicking other layers and then click on Delete Layer icon. The layer disappears from the timeline. If you have deleted the wrong layer accidentally, you can click on Edit menu and then click on Undo Delete Layer. To rename a layer, double click on the layer name and type a new name. Press Enter key. The layer name changes. तो बच्चों हम लेयर्स के साथ कैसे काम करते हैं एनिमेशन में ये हम देख लेते हैं। एक लेयर जो होती है वो आपके टाइम में एक्टिवेटेड होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक से ज़्यादा लेयर्स को एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको उन्हें एक ही साथ सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। लेयर्स के साथ काम करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि आप इन्हें क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो और आप नंबर ऑफ़ लेयर्स को भी ऐड कर सकते हो, साथ ही साथ इन्हें हाइड और लॉक भी कर सकते हो और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इन्हें डिलीट भी कर सकते हो। इनकी पोजीशन वगैरह भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। सबसे पहले आपको अगर न्यू लेयर को इंसर्ट करना है तो आपको न्यू लेयर बटन पे क्लिक करना होगा, ठीक है, जो कि आपको टाइमलाइन पैनल में नज़र आएगा। उसके बाद आप इंसर्ट न्यू लेयर पे भी क्लिक कर सकते हो। इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाना होगा, देन आपको टाइमलाइन पे जाना पड़ेगा, देन आपको लेयर पे जाना होगा। अगर आपको कोई लेयर को डिलीट करना है तो आपको उस लेयर को सेलेक्ट करना पड़ेगा, देन आपको डिलीट लेयर बटन को क्या करना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, जो कि आपको टाइमलाइन पैनल में नज़र आएगा, ठीक है। आप एक से ज़्यादा लेयर्स को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको फर्स्ट लेयर पे क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है, जिसे आप डिलीट करना चाहते हैं। देन आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल की को वाइल क्लिकिंग अदर लेयर्स, मतलब कंट्रोल की को प्रेस करते करते आपको जो जो लेयर डिलीट करनी है आप उस पर क्लिक करते जाएंगे। फिर आप डिलीट लेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो लेयर है वो आपके टाइमलाइन से डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई रॉन्ग लेयर को एक्सीडेंटली डिलीट कर दिया तो कोई बात नहीं, आप उसको दोबारा से अंडू भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसके लिए एडिट मेन्यू पे जाना है, देन आपको अंडू डिलीट लेयर पे क्लिक करना है। अगर आप किसी लेयर को रीनेम करना चाहते हैं, उसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो आपको उस लेयर पे डबल क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, और आपको वहाँ पे जो न्यू नेम है वो टाइप करना पड़ेगा। देन जब आप न्यू नेम टाइप कर लेंगे तो आपको एंटर की को प्रेस करना है, आपका जो लेयर नेम है वो चेंज हो जाएगा। Animation in Animate CC. Animation involves a series of still images, usually painted or sketched, displayed in rapid sequence. This transition from one image to another is so quick that it appears to show movement. Animation in Animate CC is created by changing the contents of successive frames. We can make an object move across the stage, increase or decrease its size, fade in or fade out, change color or shape using an animation. In Animate CC, we can create an animation by using a frame by frame animation method or tweened method. In frame by frame animation, we create an image in every frame, but in the tweened animation, we create the starting and ending keyframes to animate the object. Animate itself creates the motion effects in between the frames. Let's learn about tweened animation in detail. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम एनिमेट सीसी में एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। एनिमेशन जो होता है वो आपके स्टिल इमेज की सीरीज़ होती है, ठीक है। आप ये सोचते रहते हो कि ठीक है आपने ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर दिया, पर कैसे उसे हम मूव कराएंगे। तो मूव जो होता है वो स्टिल इमेजेस के साथ होता है, वो स्टिल इमेजेस की सीरीज़ होती है जिनको एक साथ लगाकर प्ले किया जाता है, तो ऐसा लगता है आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आपकी स्क्रीन पर मूव
कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके एनिमेशंस होते हैं एनिमेट सीसी में, वो इस तरह से क्रिएट किए जाते हैं ताकि आपके कंटेंट को सक्सेसिव फ्रेम में क्या किया जा सके, चेंज किया जा सके। इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट के जो साइज़ होता है उसे आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप उसे फेड इन फेड आउट भी कर सकते हो, उसके शेप, उसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। एनिमेट सीसी में आप डिफरेंट एनिमेशन को क्रिएट करते हो जिसमें आप फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को यूज़ करते हो, और साथ ही साथ आप एनिमेशन मेथड एंड ट्विन मेथड जिसे कहा जाता है, दूसरे शब्दों में उसे आप यूज़ कर सकते हो। फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन में आप इमेजेस को क्रिएट करते हो हर एक फ्रेम में, ठीक है, लेकिन ट्विन एनिमेशन में आप स्टार्टिंग से एंडिंग की फ्रेम तक आप पूरे एनिमेशन को क्रिएट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का। अब हम ट्विन एनिमेशन के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। Twinned animation. In twinned animation, you only create the starting and the ending frame and let animate create the rest of the frames in between. The movement of an object in between the frames is called tween. Animate CC provides 3 types of tweens. Motion tweens, second classic tween, third shape tween. Motion tween. This is one of the basic animation technique. Motion tween refers to any object that travels from one point to another and involves no change in the shape or size of the object over a period of time. However, changes may occur in color, texture or distance of the object. Let us understand this with the example of a star moving from one end to another on the screen. The various steps to create motion tween animation are listed below. तो बच्चों, ट्विन एनिमेशन जो होता है उसमें आप सिर्फ स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्रेम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। इसके बीच का जो पार्ट होता है वो एनिमेशन द्वारा क्रिएट किया जाता है, और जो मूवमेंट होते हैं ऑब्जेक्ट के वो आपके फ्रेम्स के बीच में डाले जाते हैं जिन्हें ट्विन कहा जाता है, ठीक है। एनिमेट सीसी जो होता है वो आपको 3 टाइप्स ऑफ ट्विन जो होता है वो प्रोवाइड करता है। पहला होता है आपका मोशन ट्विन, देन होता है आपका क्लासिक ट्विन एंड थर्ड होता है आपका शेप ट्विन। इसमें सबसे पहले हम मोशन ट्विन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये एक बेसिक एनिमेशन टेक्निक होती है जिसमें मोशन ट्विन जो होता है वो रेफर करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या करता है, ट्रैवल करता है। इसमें उसके जो साइज़ होता है, जो उसकी शेप होती है, उसमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आता। हाउएवर उसका जो कलर होता है, उसका जो टेक्सचर होता है और उसका जो डिस्टेंस होता है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जो है होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे हम समझते हैं कैसे हम मोशन ट्विन को अप्लाई करते हैं। स्टेप 1, open a new file and draw the object on the stage. In this case, we have drawn a star. After drawing the object, convert it into a symbol by choosing Modify, Convert to Symbol buttons on the Animate windows or press F8. Convert it to Movie Clip symbol. Step 2, click on the frame 1 of layer 1 in the timeline panel. Step 3, drag the object in the left hand side of the stage by using the selection tool. Step 4, click on the insert motion twin option from the menu bar. Step 5, the timeline is incremented to frame 24 by default and the playhead shifts to frame 24. The default setting in Animate is set to 24 frames per second FPS, which will create a 1 second animation. We can change this setting if required. Step 6, select the symbol and drag it to the right across the stage. On the stage, notice the motion guide that indicates the symbol path of motion between frame 1 and frame 24. Step 7, to view the motion tween, click on Control Test Movie in Animate. The motion tween animation is displayed in a window. We can change the direction of the animation using motion guide. Move the cursor to the anchor points in motion guide. The animation using motion with a curve. तो बच्चों, हम यहाँ पे मोशन ट्विन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू फाइल को ओपन करना है, देन आपको ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करना है आपके स्टेज पे, ठीक है। इस केस में हम एक स्टार जो है वो ड्रॉ करेंगे। जब आप
ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लोगे तो आपको उसे सिंबल में क्या कर देना है, कन्वर्ट करना है। ये आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको मॉडिफाई चूज़ करना है, उसके बाद आपको कन्वर्ट टू सिंबल बटन चूज़ करना है जो कि आपको एनिमेट विंडो में नज़र आएगा, या फिर आप F8 को भी प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसे मूवी क्लिप सिंबल में कन्वर्ट करेंगे। देन आपको फ्रेम 1 ऑफ लेयर 1 पे क्लिक करना है जो कि आपको टाइमलाइन पैनल में नज़र आएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट को ड्रैग करके लेके जाना है इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेज, ठीक है, जो कि आप सिलेक्शन टूल से करेंगे। देन आपको क्लिक करना है ऑन द इंसर्ट, फिर उसके बाद आपको मोशन टूल पे जाना है, ठीक है, जो कि आपको मेन्यू बार में नज़र आएगा। उसके बाद आपका जो टाइमलाइन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा टू फ्रेम 24, और बाय डिफ़ॉल्ट जो प्ले हेड है वो शिफ्ट हो जाएगा टू फ्रेम 24। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है एनिमेट की वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड FPS में सेट हो जाएगी। उसके बाद आपकी जो सेकंड एनिमेशन है वो आपकी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आप अपनी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं अपनी सिचुएशन के या अपनी जो आपकी डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको सिंबल को सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको ड्रैग करके उसे लेके आना है टू राइट अक्रॉस द स्टेज, ठीक है। आप स्टेज पे नोटिस करोगे जो आपका मोशन गाइड है वो इंडिकेट करेगा आपके सिंबल पाथ ऑफ मोशन को, ठीक है, जो कि आपके फ्रेम 1 से फ्रेम 24 के बीच में आपको दिखाई देगा। उसके बाद आपको जाना है टू व्यू द मोशन ट्वीन, आपको कंट्रोल पे क्या करना है, क्लिक करना है। देन आपको टेस्ट मूवी पे जाना है, उसके बाद आपको इन एनिमेट पे जाना है, ठीक है। तो जो आपका मोशन ट्वीन एनिमेशन है वो आपकी विंडो पे डिस्प्ले होने लगेगा। आप इसके डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं यूजिंग मोशन गाइड, ठीक है, और साथ ही साथ अपने कर्सर को मूव करके एंकर पॉइंट पे आप उसके मोशन गाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। मोर टू नो द एक्सटेंशन ऑफ animate file is .fla. Classic Tween. Classic Tween is an animation primarily used for transition purposes. In this tween, you define properties such as position, size, and rotation for a shape at one point in time, and then you change those properties at another point in time. Animate fills the in-between frames to create the animation. To create a classic tween, perform the following steps. Step 1. Create a new animate CC document with ActionScript 3.0. Step 2. Click on the fill color tool to choose a color of your choice. Step 3. Select the Polystar tool from the tools panel. Step 4. Draw and star on the left hand side of the stage by using the Polystar tool. Step 5. Click on the frame 1 on the layer 1 of the timeline. Step 6. Select the Insert Create Classic Tween option from the menu bar. Step 7. Click on frame 20 on the layer 1 of the timeline. Step 8. Click on Insert Timeline Keyframe option from the menu bar. Step 9. Select the Selection tool from the Tools panel. Step 10. Drag the star to the bottom of the stage. Step 11. Click on the frame 40 on the layer 1 of the timeline. Step 12. Select the Insert Timeline Keyframe option from the menu bar. Step 13. Select the Selection tool from Tools panel. Step 14. Drag the star to the right hand side of the stage. Step 15. Select the Control Test Movie in Animate option to play the movie. अब बच्चों हम क्लासिक ट्वीन के बारे में जान लेते हैं। क्लासिक ट्वीन जो होता है वो आपका एनिमेशन होता है प्राइमरीली, जो कि ट्रांजिशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इस ट्वीन में आप प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करते हो, जैसे कि आपके एनिमेट जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन, उसके साइज़, उसके रोटेशन को, ठीक है, जो कि आपका एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है, सेम रहता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे आप उसे क्या कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। अगर आपको क्लासिक ट्वीन को क्रिएट करना है तो आपको जो फॉलोइंग स्टेप्स दिए गए उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको न्यू एनिमेट CC डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, विद ActionScript 3.0। उसके बाद आप फिल कलर टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ताकि आप अपने चॉइस का कलर चूज़ कर सको। देन आप सेलेक्ट करेंगे पॉलीस्टार टूल को फ्रॉम द टूल्स पैनल। उसके बाद आप एक स्टार को ड्रॉ करेंगे ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेज, ठीक है, इसी पॉलीस्टार टूल को यूज़ करके।
देन आप फ्रेम 1 पे क्लिक करेंगे ऑन द लेयर 1 ऑफ द टाइमलाइन। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे, देन आप क्रिएट क्लासिक ट्वीन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे फ्रॉम द मेन्यू बार। ठीक है, इसके बाद आप फ्रेम 20 पे क्लिक करेंगे ऑन द लेयर 1 जो कि आपके टाइमलाइन में आपको नज़र आ रही होगी। उसके बाद आप इंसर्ट पे जाएंगे, देन आप टाइमलाइन पे जाएंगे, देन आप की फ्रेम पे जाएंगे। ठीक है, जो कि आपको मेन्यू बार में ही नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम द टूल्स पैनल। देन आपको स्टार को ड्रैग करके लेके आना है स्टेज के बॉटम पे। उसके बाद आपको फ्रेम 40 पे क्लिक करना है जो कि आपको लेयर 1 पे नज़र आएगा टाइमलाइन पे। ठीक है, उसके बाद आपको इंसर्ट पे जाना है, देन आपको टाइमलाइन पे जाना है, देन आपको की फ्रेम ऑप्शन पे जाना है फ्रॉम द मेन्यू बार। इसके बाद आपको सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करना है फ्रॉम टूल्स पैनल। देन आपको उस स्टार को ड्रैग करके लेके जाना है राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेज। ठीक है, इसके बाद आपको कंट्रोल को सिलेक्ट करना है, देन आपको टेस्ट मूवी को सिलेक्ट करना है इन एनिमेट और आपकी जो मूवी है वो प्ले हो जाएगी। शेप ट्विन। By shape twinning, you can create an effect similar to morphing whereby one shape appears to change to another shape over time. In shape twinning, you draw one shape in one keyframe and another shape in another keyframe. The in-between frames are filled by animate to change the first shape into the second, thus creating the animation to create a shape twin. Perform the following steps. Step 1. Create a new document in Animate CC. Step 2. Select the Polystar tool from the Tools panel and draw a star on the stage. Step 3. Select the Selection tool from the Tools panel. Step 4. In the Timeline panel, right-click on frame 50 and select the Insert Keyframe options. Step 5. Select the star object on stage by using the Selection tool. Step 6. Press the delete key. The star object will be removed from the stage. Step 7. Select the Polystar tool from the Tools panel and draw a star. Step 8. Right click on the timeline panel between frame 1 and frame 50 and select the Create Shape Twin option. Step 9. The timeline color changes to green and the shape twin is created. Step 10. To view the shape twin, click on the Control Test Movie in Animate option from the menu bar. The shape twin animation is now displayed in a pop-up window. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम शेप ट्विनिंग को अपनी एनिमेशन में परफॉर्म करते हैं। शेप ट्विनिंग के अकॉर्डिंग आपका जो इफेक्ट है वो क्रिएट किया जाता है सिमिलर टू मॉर्फिंग। ठीक है, जहाँ पे आपके शेप जो होते हैं वो डिफरेंट शेप के साथ अकर होते हैं। इन शेप ट्यूनिंग में आप वन शेप को ड्रॉ करते हो इन वन की फ्रेम और दूसरे शेप को दूसरे की फ्रेम में ड्रॉ करते हो। ठीक है, इन फ्रेम्स के बीच में आपके एनिमेट जो हैं वो फिल किए जाते हैं और इन एनिमेट को आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर क्रिएशन। तो बच्चों हम शेप ट्यूनिंग के बारे में जान लेते हैं। शेप ट्यूनिंग के जो इफ़ेक्ट होता है उसके वजह से आप अपनी इफ़ेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, जो कि मॉर्फिंग के सिमिलर होता है और यहाँ पे आप शेप्स को डिफरेंट शेप्स में अपीयर करवा सकते हो। ठीक है, शेप ट्यूनिंग में आप एक शेप जो है वो एक की फ्रेम में ड्रॉ करते हो और साथ ही साथ आप दूसरे शेप को दूसरे की फ्रेम में ड्रॉ करते हो। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं स्टेप्स के थ्रू कि कैसे ट्विनिंग जो है शेप ट्विनिंग वो हम परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है एनिमेट सीसी में। उसके बाद आपको पॉलीस्टार टूल को सेलेक्ट करना है जो कि आपको टूल्स पैनल में दिखेगा। ठीक है, इसके बाद आपको स्टेज पे स्टार ड्रॉ करना है। देन आपको सिलेक्शन टूल को सेलेक्ट करना है टूल्स पैनल में से। उसके बाद आपको टाइमलाइन पैनल में राइट क्लिक करना है फ्रेम 50 पे। इसके बाद आपको इंसर्ट की फ्रेम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन आपको स्टार ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जो कि आपके स्टेज में आपका अपीयर हो रहा होगा। ठीक है, इसे आप सिलेक्शन टूल से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप डिलीट की को प्रेस करेंगे। देन आपका जो स्टार ऑब्जेक्ट है वो आपके स्टेज से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आपको पॉलीस्टार टूल को सेलेक्ट करना है जो कि आपके टूल पैनल्स में नज़र आ रहा होता है। ठीक है, और आपको
फिर से एक स्टार जो है वो ड्रॉ करना है। देन आपको टाइमलाइन पैनल पर राइट क्लिक करना है, जो कि फ्रेम 1 एंड फ्रेम 50 के बीच में आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद आपको क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको टाइमलाइन कलर को चेंज करना है, ठीक है, किसमें, ग्रीन में, ठीक है। उसके बाद आपका जो शेप ट्विन है वो क्रिएट हो जाएगा। अब आपको शेप ट्विन को देखना है तो आपको कंट्रोल पैनल में जाना होगा, उसके बाद आपको टेस्ट मूवी में जाना होगा और आपको एनिमेट ऑप्शन में आपकी जो मूवी है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगी विंडो पे। थिंक बॉक्स, अनुज वांट्स टू मूव अ स्टार अलोंग अ पाथ, विच टाइप ऑफ ट्विन शुड ही यूज। बच्चों ये आपको बताना है कि अनुज को अपना जो स्टार है वो एक पाथ पे उसे मूव कराना है, तो इसके लिए उसे कौन सा ट्विन जो है वो यूज करना पड़ेगा। नाउ मास्किंग इन एनिमेट। Masking is a process of hiding and displaying content on a layer. It is used in Animate to create spotlight effects and transitions that display the text through a hole. A mask controls the visible area in one or more layers. Masking can be used to hide objects under a mask, animate the mask or object under the mask, or even place multiple masks in a scene. Creating a mask layer. To create a mask layer, follow the given steps. Step 1. Open a new file in Animate CC. Step 2. Select the selection tool from the Tools panel. Step 3. In the Timeline panel, click on the frame 45 and then right click and select the Insert Frame option. Step 4. Click on the frame 1 from the Timeline panel. Step 5. Select the file Import to stage option from the menu bar to import pictures to the background. Step 6. Import image appears on the stage. Add a new layer. Step 7. Select the layer 2 from the left pan of the timeline panel. Step 8. Click on the frame 1 in the timeline panel. Step 9. Select the Polystar tool from the tools panel and draw a triangle to the left side of the stage. Step 10. In the timeline panel, right click on the frame 45 of the layer 2. Step 11. Select the convert to keyframes options. Step 12. Select the selection tool from the tools panel. Step 13. Select the triangle object and drag this object to the right hand side of the stage. Step 14. Now right click on the timeline panel between frame 1 and frame 100. Select the create shape tween option. Step 15. As soon as we create the shape tween, the timeline color changes to green. Observe the bottom panel. Now right click on the layer 2 and select the mask option. Step 16. As soon as we select the mask option, the mask is created. In order to view the mask, click on the control test movie in animate option from the menu bar. The task animation is now displayed in a pop-up window. तो बच्चों हम मास्किंग के बारे में जान लेते हैं कि मास्किंग क्या होती है एनिमेट सीसी में, ठीक है। मास्किंग जो होती है एक प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने कंटेंट को हाइड करते हो या उसे डिस्प्ले करते हो ऑन अ लेयर, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है एनिमेट में टू क्रिएट स्पॉटलाइट इफेक्ट और ट्रांजिशंस को भी इसके थ्रू डिस्प्ले किया जाता है, ठीक है। मास्क जो होता है ये आपके विजिबल एरिया को कंट्रोल करता है, ठीक है, 1 एंड उससे ज़्यादा लेयर्स में। मास्किंग जो होती है वो आपके ऑब्जेक्ट को हाइड करती है अंडर अ मास्क, ठीक है, मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मास्क के अंदर हाइड कर दिया जाता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे कैसे हम मास्क लेयर को क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्टेप्स हमें दिए गए हैं वो हम फॉलो कर लेते हैं। सबसे पहले आपको न्यू फाइल को ओपन करना है एनिमेट सीसी में। देन आपको सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल जो कि आपको टूल्स पैनल में देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको टाइम लाइन पैनल में जाना है। देन आपको फ्रेम 45 को क्लिक करना है। देन आपको राइट क्लिक करना है और आपको इंसर्ट फ्रेम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप फ्रेम 1 पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टाइमलाइन पैनल में नज़र आएगा। इसके बाद आपको फाइल को सेलेक्ट करना है। फाइल को सेलेक्ट करने के बाद आप इंपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद आप इंपोर्ट टू स्टेज ऑप्शन पे जाएंगे फ्रॉम द मेन्यू बार ताकि आप पिक्चर्स को इंपोर्ट कर सकें बैकग्राउंड में। उसके बाद आपको इमेजेस
को इंपोर्ट करना है, ठीक है। तो जो आपकी इंपोर्टेड इमेज है वो आपके स्टेज पे नज़र आएगी, ठीक है। उसके बाद आपको न्यू लेयर को ऐड कर देना है। देन आपको लेयर 2 को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द लेफ्ट पैन ऑफ द टाइमलाइन पैनल, ठीक है। उसके बाद आपको फ्रेम 1 पे क्लिक करना है जो कि आपको टाइमलाइन पैनल पे नज़र आएगा। देन आपको पॉलीस्टार टूल को सेलेक्ट करना है जो कि आपको टूल्स पैनल में नज़र आएगा, और आपको एक ट्रायंगल जो है वो ड्रॉ करना है, कहाँ पे, लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेज पे। देन आपको टाइमलाइन पैनल में राइट क्लिक करना है ऑन द फ्रेम 45 जो कि आपको लेयर 2 में नज़र आएगा। उसके बाद आपको कन्वर्ट टू की फ्रेम्स ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। देन आपको सेलेक्ट करना है सिलेक्शन टूल को फ्रॉम द टूल्स पैनल। देन आपको ट्रायंगल ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था उसको आपको सेलेक्ट करना है, और उस ऑब्जेक्ट को आपको ड्रैग करके लेके आना है राइट हैंड साइड ऑफ द स्टेज, ठीक है। वो लेफ्ट साइड में आपने ड्रॉ किया था, आपको उसको ड्रैग करके माउस से लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे। देन आपको राइट क्लिक करना है ऑन द टाइमलाइन पैनल जो कि आपके फ्रेम 1 एंड फ्रेम 100 के बीच में है, ठीक है। फिर आपको सेलेक्ट करना है क्रिएट शेप ट्विन ऑप्शन को, ठीक है। जब आपके शेप ट्विन क्रिएट हो जाते हैं तो आपका जो टाइमलाइन का कलर है वो चेंज हो जाता है, किसमें, ग्रीन में, ठीक है। फिर आपको राइट क्लिक करना है लेयर 2 में, और फिर आपको मास्क ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जब आप मास्क ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपका जो मास्क है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अगर आपको मास्क को देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंट्रोल पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको टेस्ट मूवी पे जाना पड़ेगा। उसके बाद आपको इन एनिमेट ऑप्शन पे जाना पड़ेगा फ्रॉम द मेन्यू बार। तो आपका जो मास्क एनिमेशन है वो आपके पॉपअप विंडो में डिस्प्ले हो जाएगा। तो बच्चों, आई होप आपको एनिमेट सीसी का ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।